طارق روڈ کے قریب امیر خسرو روڈ پر گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ امدادی کارروائیوں میں فائر ٹینڈر سمیت 3 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ مزید بتائیں گے مبشر حسین جی۔ میں طارق روڈ کے مقام امیر خسرو روڈ پر موجود ہوں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک گودام تھا عمارت کے نیچلے حصے میں، اور وہاں جو ہے وہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کس طرح یہ آگ لگی تھی، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا، میرے ساتھ فائر آفیسر ہیں فائر بریگیڈ کے، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا سر، کس طرح یہ آگ لگی تھی اور ابتدائی طور پہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں؟ اس وقت ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے، مگر جو ہے ظاہر ہے ہمارے پہنچنے پر پھر ہم نے اس کو آگ کو کنٹرول کیا۔ تقریباً کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے بعد پھر اس کو اب تقریباً آگ ختم ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا کولنگ کا ہمارے وہ بھی تقریباً مکمل ہی ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں مختلف سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا گھر کے اندر، جیسے فرنیچر وغیرہ کا آئٹم ہے اور دوسری اینگل وغیرہ ہے، بکس وغیرہ ہے، فرنیچر وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں تھی۔ تو یہ ہے کہ آگ کولنگ کا عمل مکمل ہو گیا اور ارد گرد کے جو فلیٹس وغیرہ تھے ان کو بھی جو ہے وہ جلنے سے بچا لیا، سیو کر لیے۔ جی، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر آگ جو ہے وہ گودام میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی، اور اس کے بعد فوری طور پر 2 گاڑیاں فائر ٹینڈر نے پہنچ کر جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس وقت کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے ابتدائی طور پہ کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ کتنا سامان جل کر خاکستر ہوا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ بتایا جاتا ہے ابتدائی طور پہ کہ 45% سامان جو ہے وہ اس وقت جل کر خاکستر ہوا ہے۔ جی۔ کراچی میں کمرشل رہائشی پلاٹس پر مبینہ غیر قانونی شادی ہالز اور مارکیز کی تعمیر کا معاملہ نیب کراچی کے احکامات پر ایس سی اے ضلع وسطی نے 230 شادی ہالز مارکیز پر رپورٹ جمع کرائی ہے۔ نیب کراچی کے احکامات پر ایس پی سی اے نے 230 شادی ہالز اور مارکیز پر رپورٹ جمع کرائی۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ دیکھا جائے نیب کو موصول ایک شکایت پر ڈی جی ایس ڈی سی کے نام کال اب نوٹس میں مکمل رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ رپورٹ میں شامل تمام شادی ہالز کی اکثریت کی جو تعمیر ایس ڈی سی اے کی اجازت یا منظوری کے بغیر کی گئی۔ کمرشل رہائشی پلاٹ پر مارکیز کی مبینہ غیر قانونی جو شادی ہال کی تعمیر کے لیے بھی اجازت نہیں لی گئی، اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ غیر قانونی شادی ہال مارکیز کی تعمیر 200 سے 1200 کے گز کے پلاٹ پر تعمیر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی شادی ہال مارکیز مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے۔ نیب نے غیر قانونی تعمیرات سے سرکاری خزانے کو نقصان کی تفصیلات فراہم کرنے کا کہا ہے، اور کال اب نوٹس میں جو این او سی کے اجرا کے ضمن میں جو ہے قوانین کی خلاف ورزیوں کی تفصیل بھی مانگی گئی تھی۔ این او سی منظوری کے بغیر جو رفاہی رہائشی کمرشل پلاٹ پر جو تعمیرات کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ کال اب نوٹس میں مذکورہ پلاٹس پر قائم مبینہ غیر قانونی شادی ہالز مارکیٹ کے خلاف آپریشن کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر صبح 10 بجے طلب، صوبائی وزراء مشیر معاونین خاص شرکت کریں گے۔ سندھ کابینہ اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء مشیر معاونین خاص شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر صبح 10 بجے طلب، صوبائی وزراء مشیر معاونین خاص شرکت کریں گے۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر صبح 10 بجے ہوگا۔ اس سے قبل 1.5 ہفتہ قبل یہ اجلاس ہوا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد اب اجلاس طلب کیا جائے گا اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، پلانز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طویل اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہر 15 دن کے بعد اجلاس ہوگا، اور اسی ضمن میں 1 دسمبر کو یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ جمشید زون ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ڈمپنگ پوائنٹ عذاب بن گیا۔ پی ایس ایچ ایس قائدین اسکول کے خلاف ڈمپنگ پوائنٹ ختم نہ کرنے کے خلاف احتجاج، طلبہ اور اساتذہ نے شدید نعرے بازی کی۔
रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ तलबा और असातिज़ा भी मैदान में आ गए। चनेसर टाउन यूसी 1 वार्ड के कायदीन गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल से मुल्हिका कचरा कुंडी में कचरा जलने, सड़क और इसे उठाने के दौरान शोर शराबे से आजिज़ आए तलबा और तालिबात ने और असातिज़ा ने मुजाहरा किया। टीचर बोले बार बार की दरखास्तों के बावजूद इंतज़ामिया इस GTS को हटाने में नाकाम है, जिसने सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा रखा है। यहाँ ये कचरा कुंडी जो है काफ़ी सालों से मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इसकी स्मेल की वजह से, गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं और उनके वालिदैन आके यहाँ शिकायत भी करते हैं और बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, असातिज़ा कराम भी मुतासिर हो रहे हैं। प्ले कार्ड उठाया एहतजाज करते तलबा बोले क्लास रूम में ताफुन और मच्छरों समेत दीगर कीड़ों की यलगार उन्हें बीमार कर रही है। कचरा जलने पर उनका सांस लेना दूबर हो जाता है और वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। इस कचरा कुंडी से गेंद आती है, बुदबू आती है और मच्छर फैलते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्बिंग होती है। PECHS ब्लॉक 6 के स्कूल से मुत्तसिल गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर पूरे इलाके का कचरा लाकर जमा किया जाता है, जो अतराफ की आबादी के लिए भी अजियतनाक बना हुआ है। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई की कड़वाहट चीनी की मिठास छीनने लगी। गन्ने की क्रशिंग का आगाज ना होने के सबब सिंध में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। ताजिर कहते हैं कि हफ्ते के आगाज पर चीनी 10 रुपए से 12 रुपए किलो महंगी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते 183 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी 190 रुपए किलो से तजावुज़ कर गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर आप इससे बाहर। बाजार में चीनी 12 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। हुकूमत ने चीनी की सरकारी होलसेल कीमत 173 रुपए और रिटेल कीमत 177 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। ताहम मार्केट में इन कीमतों पर चीनी दस्तयाब नहीं। ताजरों के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते होलसेल में चीनी 183 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब थी, लेकिन हफ्ते के आगाज़ पर कीमत में मजीद 10 से 12 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। देखिए 22 तारीख को मोरखा 22/11/2025 को जो रेट थे वो थे 100 और अपना 82-83 रुपए। आज जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 198 रुपए। मतलब एक ही दिन के अंदर 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए की तेजी आ गई है। तो ये तेजी करने वाले तमाम के तमाम बड़े लोग हैं, मिल ओनर्स हैं। ये कोई छोटे लोगों का काम नहीं तेजी करना, ये माफियाज का काम है। और माफियाज जो है वो तमाम मिल ओनर्स हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम बुनियादी अशिया में शुमार होने वाली चीनी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी। शहरियों का कहना है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर चीनी की कीमत में इस्तेकाम कब आएगा। ये तो आजकल महंगाई के हिसाब से जो पहले मिसाल के तौर पर रेट दिए थे 160-180 जो पहले 150 के करीब, या इस टाइप की कम से कम ऐसे तो होनी चाहिए। 200 रुपये तो ज़्यादा महंगी है। पहले ही लोग हालात ठीक नहीं है, तकरीबन हर चीज़ महंगी चल रही है। लोग बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से और इसी तरीके से दूसरी चीज़ों से काफ़ी परेशान हैं। चीनी की बढ़ती कीमतें महंगाई से सताए हुए शहरियों के लिए नई मुश्किल बन गई है। तो वही ताजरों ने उम्मीद जाहिर की है कि क्रशिंग का आगाज़ होते ही चीनी की कीमतों में कमी आएगी। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कराची में गैस बहरान का सिलसिला न रुक सका। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन सिटी में बसने वाले शहरी बिजली की एलानिया लोड शेडिंग से आजिज़ आ चुके हैं। शहर भर में गैस बहरान और बिजली की बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी, घगर फाटक, मंगो पीर, कंवारी कॉलोनी, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन और मवाज कोट समेत मुतादिद इलाकों में गैस के मसाइल ने रोज़मर्रा बुरी तरह अमूर मुतासर कर दिए हैं। शहरियों के मुताबिक गैस के मसाइल के बायस खाने की तैयारी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। KE होल्डिंग के इलेक्ट्रिक बोर्ड इंतखाबात कराने की दरख्वास्त। मौजूदा बोर्ड की मुद्दत 29 जुलाई 2025 को ख़त्म हो चुकी। KEH के डायरेक्टर केस मैकडोनल्ड ने AK इलेक्ट्रिक के CEO, SECP के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO को ख़त लिख दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। KE होल्डिंग ने के इलेक्ट्रिक बोर्ड इंतखाबात कराने की दरख्वास्त कर दी। मौजूदा बोर्ड की मुद्दत 29 जुलाई 2025 को ख़त्म हो चुकी। KE होल्डिंग के शेयर होल्डर ने फौरी इंतखाबात की दरख्वास्त कर दी। शेयर होल्डर में KES पावर, मॉरिशस और के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान शामिल। KEH के डायरेक्टर केस मैकडोनल्ड ने खत लिख दिया। खत के इलेक्ट्रिक के CEO, SECP चेयरमैन और CEO स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया। खत के मुताबिक KES पावर लिमिटेड का 53.8% शेयर होल्डिंग है, जो के इलेक्ट्रिक के 66.4% हिस्से रखती है। KEH के पास के इलेक्ट्रिक में 35.7% बिला वास्ता मलकियत है। खत में KEH ने के इलेक्ट्रिक के सीनियर मैनेजमेंट के हालिया रवैये पर तशवीश जाहिर किया। कंपनी की हसास मालूमात और बोर्ड मीटिंग्स की गलत रिपोर्टिंग पर भी तशवीश की गई। के इलेक्ट्रिक क़यादत में अहम स्टेक होल्डर बशमूल हुकूमत और नेपरा का एतमाद खो दिया। KEH के खत में वादे किया गया कि क़यादत ने टैरिफ एप्पल फोरम्स का मौसर इस्तेमाल न करके शेयर होल्डर को नुकसान पहुँचाया।
कंपनी को किसी अकलियती शेयर होल्डर ग्रुप या खुद गर्ज मैनेजमेंट के कब्जे में नहीं रखा जा सकता। अब जरूरी है कि के इलेक्ट्रिक में मुकम्मल बोर्ड नुमाइंदगी हो। खत में फौरी तौर पर नए बोर्ड इंतखाबात कराने पर जोर दिया। नई क़यादत पायदार टैरिफ ढांचा और कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाए। KEH ने शेयर होल्डिंग से मुतल्लिक अहम तजावीज़ भी पेश की। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड की बहाली कानूनी और मुआहदती हुकूक के मुताबिक करवाई जाए। खत के मुताबिक सीनियर मैनेजमेंट को जवाबदेह बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि तेज़ी के साथ सड़कों की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तस रकम से 315 छोटी और 60 बड़ी शाहराहों की मरम्मत और असर नौ तामीर होगी। ये फैसला कराची की तरक्याती स्कीमों के मुतालिक इजलास में किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत इजलास में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कराची की तमाम शाहराहों और सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम बहुत जल्द शुरू किया जाए। मेयर कराची ने बताया कि करीमाबाद अंडरपास का काम 85% मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला ने कहा कि BRT रेड लाइन का तामीराती काम दोबारा बहाल हो गया है। कराची में शहरियों को साफ पानी की फराहमी, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया जाए। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, पाकिस्तान ने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। फूड एग 2025 के उन्वान से फूड एक्सपोर्ट नुमाइश कल से शुरू होने जा रही है। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खरीदार फूड एग 2025 के लिए कराची पहुँच रहे हैं। फूड एग 2025 में $1 अरब से ज़ायद एक्सपोर्ट डील्स मुतवक्के की जा रही हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इंतजार की घड़ी खत्म, पाकिस्तान ने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। फूड एग 2025 को मार्च से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड एक्सपोर्ट नुमाइश कल से कराची एक्सपो में शुरू हो रही है और ये नुमाइश पाकिस्तान अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई है। नुमाइश में तकरीबन 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खरीदार शरीक होंगे और इसके साथ साथ फूड एग 2025 में $1 अरब से ज़ायद की एक्सपोर्ट डील जो है वो मुतवक्के है। नुमाइश जो है वो 25 से 27 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। जिसमें नुमाइश में चावल, आम, सी फूड, गोश्त जैसी मसनूआत है वो पेश की जाएगी। नुमाइश में 200 से ज़ायद अफ्रीकी और एशियाई खरीदार भी शरीक होंगे और नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तिजारत जाब कमाल खान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जराइम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 40 साल शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजमान मकतूल की मोटरसाइकिल लेकर फरार। मकतूल खुद भी जराइम पेशा निकला। कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने टारगेट किलिंग और दौरान डकैती हलाकत के पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल की दीदा दलेरी, अकेला ही पेट्रोल पंप लूटने पहुंच गया। गुज़श्ता रोज जमशेद क्वार्टर में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी भी हुए। वारदात की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला मुलजिम पेट्रोल पंप पर आता है, कैशियर से लूट मार करता है। करीब मौजूद ASI राना निसार मुलजिम को देख लेता है। पुलिस एहलकार मुलजिम पर फायरिंग करता है, मुलजिम भी जवाबी फायरिंग करता है। फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच जाती है। पुलिस एहलकार राना निसार मुलजिम की गोली लगने से गिर जाता है। मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार हो जाता है। फायरिंग से पुलिस एहलकार और शहरी शदीद जख्मी हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सोहराब गोट के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों अफगानी धर लिए गए। हिरासत में लिए गए अफराद का डाटा चेक किया जा रहा है। मजीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल कराची में ऑपरेशन जारी है अफगानियों के खिलाफ और हम बात करते हैं अगर अफगान बस्ती की, जो कि वेस्ट जोन का इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी था। उसके बाद उनके मकानात को मसमार किया गया और जो वहाँ पर कब्जा माफिया आ रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई और अब सोहराब गोट पुलिस भी अफगानियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। और आज के सुबह से लेकर अब तक मुख्तलिफ औकात कार के अंदर जो ऑपरेशन किए गए हैं उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफगानियों को हिरासत में लिया गया है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया है और साथ ही साथ जो मजीद हैं उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। तो फैल साहब, बहुत शुक्रिया। SHO सोहराब गोट हैं, आप बताइएगा कि रवां
हफ्ते कितने तारकिन वतन को आप लोगों ने यहाँ से भेजा है और ऑपरेशन के दौरान किस मुज़ाहमत का सामना हुआ है? कल हमने सुना है कि मोबाइल को भी तोड़ा इन्होंने। जो पॉलिसी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऊपर हम काम करें। तकरीबन इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 200 के से ऊपर अपना हमने ऑपरेशन गिरफ्तार किए बाशिंदे, अफगान बाशिंदे, और 800 के करीब वॉलंटियर यहाँ से गए। अच्छा, ये बताइएगा, कल आप लोगों ने रात में ऑपरेशन किया तो आप लोगों को मुज़ाहमत का सामना भी था, पथराव भी हुआ, मोबाइल को भी तोड़ा उन्होंने, क्या वाक़या था? कल जैसे ही हमने अपना जमाली कोट के अंदर ऑपरेशन शुरू किया तकरीबन 9 बजे के करीब, तो हमने दौरान सर्च 20 से 22 बंदे हमने वहाँ से रिकवर किए। तो एक मसूद कबीले के जो लोग थे जो उनकी सपोर्ट में आ गए, उन लोगों ने पथराव किया, फायर किए, मोबाइल को, पुलिस को उन लोगों ने पत्थर मारे, नुकसान किया। तो ये अपना लोगों ने किया है, मगर हम ऑपरेशन इंशाल्लाह जाए बिल्कुल मुकदमा दर्ज किया है और नॉमिनेट हुए बंदे, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, कुछ गिरफ्तार भी हुए, बाकी ऑपरेशन इंशाल्लाह चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग अगर डाटा की बात करते हैं तो इन्होंने रवां हफ्ते जो है वो 1000 से ज़ायद अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है और कल 150 से ज़ायद को गिरफ्तार किया था, आज 100 से ज़ायद को गिरफ्तार किया है। और जो पुलिस मोबाइल को जो तोड़-फोड़ किया उसके साथ और जो पुलिस के ऊपर पथराव किया उसका वाक़ई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस दौरान जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक किया गया अफगानियों का, जबकि बताया जा रहा है कि 2 अफगानियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जिनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं और 2 टीटी पिस्टल भी रिकवर हुई हैं, जिनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सल्तनत ओमान के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। काउंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस हवाले से सैयद ज़ुबैर राशिद से बात करेंगे, वो भी वहीं मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान का बरादर मुल्क सल्तनत ओमान के कौमी दिन की पुरवकार तकरीब में, और कौंसल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सल्तनत ओमान के कौमी दिन की पुरवकार तकरीब गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल जो है वो तकरीब का हिस्सा है, जबकि कौंसल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरादर मुल्क है सीजी वॉच, बहुत मुबारकबाद आपको। क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी डिप्लोमेटिक फैमिली, बिजनेस कम्युनिटी आज सल्तनत ओमान के नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रही है, सर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक है हम लोग का लीडर का सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद दिस ओकेजन नेशनल डे ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, एंड मुबारक फॉर ऑल ओमानी businessmen, awam and government locally सारा मुबारक देते हैं उन लोग के लिए। And I would like to mention something here, also to mention the foundation of Oman. It is on November 20, 1744, which is almost 281 years, when the founder of Oman is Ahmed bin Said, Imam Ahmed Said started establish Oman, a new Oman. Since that time, Oman with the royal family Al Said Al Musaidi, and until now, Alhamdulillah, we are celebrating the 281 year of our national day. And बहुत मुबारक आप लोग के लिए, सब लोग के लिए this national day of Oman, because all brotherly country, especially for the Pakistani log, which supporting Oman a lot, and brotherly country to us and very close to our heart as well. And in this occasion as well, I would like to say that inshallah in future more taqreeb hoega Oman in Pakistan, and inshallah many things is going to be announced on time. inshallah time के ऊपर हम बहुत नया initiative आ रहा है, फिर बताएगा आप लोग को on time inshallah. लेकिन this time that we are very happy to make this ceremony here in Pakistan with our brothers and sisters and all families which are very very close to our heart.
and inshallah we'll see مزید ترقی for both country Oman and Pakistan. Pakistan Oman دوستی زندہ باد. شکریہ. بالکل جی، پاکستان عمان دوستی زندہ باد. انجینئر سمیع عبداللہ الخنجری قونصل جنرل سلطنت عمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً طور پر تمام تر لوگوں کی جانب سے محبتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو جی، ایک شخصیت جس نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہوا ہے، ہر کسی کی خوشیوں میں ہمیشہ شرکت کی ہے، تو جب آج وہ اپنے ملک کی خوشی منا رہے ہیں تو یقیناً طور پر کراچی اور پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ خوشیوں میں شریک ہے. قونصل جنرل انجینئر سمیع عبداللہ الخنجری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی، ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا رخ کریں گے. 25واں روز جاری ہے. فیسٹیول میں میورل آرٹ نمائش کا افتتاح صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کیا. فرانس سے آئے آرٹسٹ نے سنورکل کی مدد سے 10 دن میں پینٹنگ تیار کر لی ہے. راہیل بیگ سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا. ورلڈ کلچر فیسٹیول کا رنگا رنگ ثقافتی میلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور آج فیسٹیول کا 25واں روز ہے، اور اس فیسٹیول میں دنیا بھر کے آرٹسٹ اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں. ایک مورل آرٹ کی اگر بات کی جائے، جس کا آج افتتاح کیا گیا ہے. آرٹس کونسلز کے در و دیوار خوبصورت پینٹنگ سے جگمگا رہے ہیں. اس وقت صدر آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، 25 دن کا یہ ثقافتی میلہ ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں اس کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور آج جس طرح سے اس خوبصورت بلڈنگ پر پینٹنگز ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس آرٹ کو؟ کیا کہیں؟ میری توقع سے زیادہ کامیاب ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں اور میری ٹیم دنیا کے نامور آرٹسٹوں کو لانے میں کامیاب ہوئے. اس طرح کا کوئی ایک بھی میورل اس شہر میں کیا اس ملک میں بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو میوزک، تھیٹر، ڈانس، فلم اور مصوری آپ دیکھیں چاروں طرف، اور یہ کم از کم ملینز ڈالر کی تو خالی مصوری کے شاہکار ہمارے بن گئے ہیں. جتنا فیسٹیول کا خرچہ ہے اتنے کا تو ایسٹ بنتا جا رہا ہے، اور یہ پبلک کے لیے ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرٹ لوگ ڈرائنگ روم تک محدود کر کے رکھتے تھے. میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں کہ ہر چیز عوام کے لیے ہونی چاہیے. تو اب یہ جو ابھی ہماری بہت سے اور میورل آرٹسٹوں سے بات ہوئی ہے کہ اس شہر کی مختلف بلڈنگز کو بھی ہم اسی طرح سے انشاءاللہ خوبصورت کریں گے. تو میں تو بہت خوش ترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ میں اپنے شہر کو کوئی بہتر خوبصورت کرنے میں ایک اپنا رول پلے کر رہا ہوں. بالکل جی. اور یہاں پر دیکھیے تو سنارکل کی مدد سے اس پینٹنگ کو بنایا گیا. کئی روز تک آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں یہ سنارکل موجود رہی، اور اب اس کے افتتاح کے بعد یہ جو سنارکل ہے یہاں سے موو ہوگی. ہمارے ساتھ چیف آفیسر موجود ہیں فائر بریگیڈ کے. السلام علیکم. وعلیکم. کیا کہیں گے ہمایوں صاحب؟ ویسے تو یہ چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں، مگر اس بار آرٹ بنانے کے کام آئی ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا؟ بالکل ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کے لیے مقصد یہ اعزاز کی بات ہے ہمارے شہر کے لیے کہ مقصد یہ کام جو ہے مقصد ہم اس کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے 10 دن کے اندر انہوں نے یہ کمپلیٹ کیا ہے. ہماری ٹیم میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت کے مطابق یہاں پر کھڑی رہی ہے، اور مکمل ان کے ساتھ جو ہے پورے وقت جو انہوں نے اپنا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی جو یہ پینٹنگ ہے جو سامنے آئی ہے. اور جس طریقے سے مکمل پوری دنیا کے تقریباً 142 ممالک یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ اس ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ایک یہ سمجھیں اعزاز کی بات ہے. جس طریقے سے اس شہر سے بالکل ہی رونقیں ختم ہو گئی تھی، الحمدللہ اب بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں. آج چیف فائر آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ہمایوں، اور جو کہ یہاں پر بھی موجود تھے. اور اس سنارکل کی مدد سے پینٹنگز بنائی گئی. احمد شاہ کا کہنا ہے کہ نہ کہ صرف آرٹس کونسل بلکہ شہر کی اہم عمارتوں کے بھی اس مورل آرٹ سے سجایا جائے گا. دنیا بھر کے آرٹسٹوں سے بات کی جا رہی ہے، اور آج ورلڈ کلچر فیسٹیول میں جہاں پر مختلف ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا، تھیٹر ورکشاپ ہوئی، میوزک ورکشاپ ہوئی، اور اب میوزک کا تڑکا لگایا جائے گا. غیر ملکی فنکار سانسوں پر اپنی آواز کا آج جادو بھی جگائیں گے. جی. ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رنگینیاں عروج پر ہیں. آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلے کا 25واں روز ہے. برکینا فاسو سے آئی آرٹسٹ کے فائن آرٹ ورکشاپ کا انعقاد. مصورہ نے ورکشاپ میں طلبہ کو مصوری کے مختلف گر سکھائے.
सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। नौजवानों को मुसव्वरी सिखाने का मिशन अफ्रीकी खातून के मुनफरिद शाहकार ने सबको हैरान कर दिया। बर्नियाका फासो की मुसव्वरा ने वर्कशॉप में तलबा को मुसव्वरी के मुख्तलिफ हुनर सिखाए। मुसव्वरा कहती हैं कि मैंने मुसव्वरी किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी बल्कि खुद मेहनत से सीखी है। तलबा ने वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा, कहा गैर मुल्की फनकारों की जानिब से सीखने का मौका मिलना एक खुशाइंद बात है। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, मेरी फर्स्ट नहीं, मैं सारी वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, कलर ब्लेंडिंग वगैरह, कलर थ्योरी वगैरह और एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाहर से आए हुए आर्टिस्ट नई चीज़ें पता चलती हैं, न्यू मीडियम्स एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छा रहा, हमने किसी और आर्टिस्ट की, किसी और कंट्री के आर्टिस्ट की टेक्निक सीखी और उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की और हमें बहुत मजा आया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह की जानिब से मुसव्वरा को गुलदस्ता और शील्ड पेश की गई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।